Our job is to hit the target, not to count the body bags. भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के 25 घंटे बाद रविवार की शाम 6:30 बजे तीनों सेनाओं ने 1 घंटे 10 मिनट तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, वाइस एडमिरल AN प्रमोद और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई की शाम 5 बजे संघर्ष विराम हुआ। सेना ने इस दौरान कई बड़े सवालों के जवाब दिए। सेना ने राफेल के पाकिस्तान में गिराए जाने के सवाल पर कहा कि हम अभी युद्ध के हालात में हैं, इस पर कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि हम उन्हें किसी तरह का फायदा नहीं देना चाहते। You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. Thank you. लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आप सभी को पता है कि पहलगाम अटैक में किस क्रूरता से 26 लोगों को मारा गया था। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK स्थित आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। इसमें दुश्मनों को भारी नुकसान हुआ। एयर मार्शल AK भारती ने बताया कि क्या हम आतंकवादी शिविरों को नष्ट करने के अपने उद्देश्य में सफल हो पाए, तो इसका उत्तर है हाँ, और परिणाम पूरी दुनिया के सामने है। उन्होंने उन हथियारों के बारे में बताने से इनकार कर दिया जिनका उपयोग इस ऑपरेशन में किया गया। उनका दावा था कि हमारा काम टारगेट को हिट करना है, लाशें गिनना नहीं। You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. The question that you must ask us, okay, and indeed that we must ask ourselves, you inclusive, is have we achieved our objectives? Have we achieved our objective of decimating that terrorist camp? And the answer is a thumping yes. And the results are for the whole world to see. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose? You know, at this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. All I can say is that we have achieved our objectives that we selected, and all our pilots are back home. Thank you. DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि इस दौरान हमारे देश के 5 जवान शहीद हुए हैं। I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. Our hearts go out to the bereaved families, and we express our solidarity to them in this lifetime and beyond, at this grave juncture in their lives. Their sacrifices shall always be remembered and spoken of in glowing terms by a grateful nation. We have thus far, ladies and gentlemen, exercised, and my colleague Pramod highlighted this, immense restraint, and our actions
have been focused, measured, and non-escalatory. However, any threat to the sovereignty, territorial integrity, and safety of our citizens will be met with decisive. सेना से इस दौरान कई अहम सवाल भी पूछे गए। जानिए इन पर क्या जवाब मिले। इस ऑपरेशन में ब्रह्मोस S-400 मिसाइल की क्या भूमिका रही? एयर मार्शल भारती ने कहा, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से पाकिस्तान के 35 से 40 जवान मारे गए हैं। वैसे भी हमारा टारगेट उनकी सेना नहीं बल्कि आतंकी ठिकाने थे। भारत ने कौन से हथियारों का इस्तेमाल किया, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं दी जा सकती। वैसे भी हमारा काम टारगेट को निशाना बनाना है, शवों को गिनना नहीं। ऑपरेशन सिंदूर में क्या राफेल का इस्तेमाल हुआ? एयर मार्शल भारती ने कहा, इस वक्त मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हम अभी युद्ध की हालात में हैं। अगर मैं इस पर कुछ कहूँगा तो इसका उल्टा असर होगा। हम उन्हें इसका कोई फ़ायदा नहीं देना चाहते। बस इतना कहूँगा कि जो मकसद हमने तय किया उसे हासिल किया और हमारे सभी पायलट सुरक्षित वापस आ गए। हमने कितने पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया, इस पर एयर मार्शल भारती ने बताया, जैसा कि मैंने कहा कि उनके विमानों को हमारी सीमा में आने से रोका गया, इसीलिए हमारे पास मलबा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से हमने कुछ पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया है। संख्या के बारे में हम यहाँ कोई अनुमान नहीं लगाना चाहेंगे। मेरे पास संख्याएं हैं और हम इन्हें स्थापित करने के लिए तकनीकी विवरण प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस समय कोई आंकड़ा नहीं देना चाहूँगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।